Hello guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome, welcome to my channel Educational Plaza. Yes, dear students, today I am going to discuss Civics Chapter 4 Electoral Politics. You know, two classes already I have taken on different topics earlier related to need of election, conditions, minimum conditions required for a democratic elections. I have also discussed types of election etc. in my previous two videos. पहले के दो वीडियोज़ में मैंने 3-4 टॉपिक्स इस चैप्टर्स के वो शामिल किए हैं, इंक्लूड किए हैं. उस वीडियोज़ के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं. ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे और डायरेक्टली यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल. प्लेलिस्ट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर योर कन्वीनियंस. आपकी सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है. उसके लिंक भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर है. तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज से पहले आइए एक छोटा सा टर्म्स है उसको हम लोग देखते हैं. इलेक्टोरेट. व्हाट इज इलेक्टोरेट? इलेक्टोरेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ पीपल who are qualified to vote in the election for the legislature or local bodies. Means all the voters are the part of electorate. The entire body of people who are qualified, who have a right to vote in the election for legislature or local bodies. यानी इलेक्शन में जो वोट डालने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको हम इलेक्टोरेट कहते हैं. जो वोट डालते हैं, वोटर्स. इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑल द वोटर्स. दे आर नोन एज इलेक्टोरेट. यस, दे आर नोन एज इलेक्टोरेट. अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं और वी विल सी फर्दर टॉपिक्स. आप यहाँ देख सकते हो आपके बुक में ऑलरेडी ये मैप दिया हुआ है. टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया. इट इज 543. जनरल 412. Reserved 84, reserved for scheduled caste and reserved for scheduled tribes it is 47. So today I am going to discuss about constituencies. विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र जहाँ से MPs और MLA चुने जाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ मैप ऑफ इंडिया में पूरे देश को 543 पार्ट्स में बांटा गया है. होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 सीट्स. कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 यूनिट्स. डियर स्टूडेंट्स, टोटल सीट्स इन लोकसभा इज 545 बट इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर 543. 2 members are nominated from Anglo-Indian if they have not been elected by the president. Here you can see number of Lok Sabha seats or constituencies state wise. Andhra Pradesh
25 Arunachal Pradesh, 2 Assam, 14 Bihar, 40 Chhattisgarh, 11 this way. Here it is, chart is given for your convenience. And also from union territories से भी आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादरा नगर हवेली 1, दमन दीव 1, Delhi 7, Lakshadweep 1, Puducherry 1. So here you can see this. Okay, so in this map you have seen that whole our country is divided into 543 units, 543 geographical units, and each unit is known as what? Each unit is known as constituencies. Okay, each unit is known as constituencies. Let us see further. Electoral constituencies. In India, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. Election के उद्देश्य से पूरे कंट्री को डिफरेंट एरियाज में यूनिट्स में बांट दिए जाते हैं. These areas are called electoral constituency. जैसे आपके क्षेत्र में होगा, जिस भी क्षेत्र में, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी बनारस से हैं, तो बनारस संसदीय, वाराणसी संसदीय क्षेत्र, वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया elect one representative. Suppose Varanasis Lok Sabha constituency it is, all of you know. All the voters of Varanasi constituency, they will elect their own MP, member of parliament, one representative. Same way from 543 Lok Sabha constituency, there will be 543 representatives. For Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है. ये तो आपको मालूम ही है. वेरी गुड. द रिप्रेजेंटेटिव elected from each constituency is called member of parliament or an MP. अगर वो पार्लियामेंट क्षेत्र से हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. One of the feature of a democratic election is that every vote should have equal value. हर वोट की कीमत बराबर होती है डेमोक्रेसी में. Whether it is मुकेश अंबानी और his नौकरानी, there will be equal value. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टेट वाइज. गुलबर्गा, कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. Each state divided into a specific number of assembly constituency. Each state is divided into a specific number of assembly constituency. जिस तरह पूरे देश को 543 सीट्स यूनिट्स में बांटते हैं, उसी तरह हर स्टेट में जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट होता है, स्ट्रेंथ होता है, उतने हिस्सों में बांटा जाता है. जैसे जस्ट इलेक्शन हैज़ बीन हेल्ड इन बिहार, होल बिहार हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 243 यूनिट्स. बिहार में विधानसभा की कुल संख्या है, सदस्य संख्या 243, 243. तो पूरे बिहार को 243 विधानसभा लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया. इन दिस केस, जैसे झारखंड में है 81. इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA. सो लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, दे विल बी कॉल्ड MP, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, they will be called MLAs. Each parliamentary constituency has within its several assembly constituency. Yes, एक parliamentary constituency के अंतर्गत कई assembly, legislative assembly constituencies होते हैं. Take example of Madhubani district of Bihar. Madhubani is one Lok Sabha constituency, but there are 10 legislative assembly constituencies. एक मधुबनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 10
विधानसभा संसदीय क्षेत्र, यानी एक MP मधुबनी से 1 MP will be elected and 10 MLAs will be elected for the state. The same principle applies for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several ward. और जो आपके वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कहते हैं वार्ड मेंबर. Each ward elects one member of the village or the urban local body. Dear children, आप अपने पापा से पूछेंगे या आपको मालूम भी होगा कि आप जहाँ रहते हैं वो किस वार्ड में है, उसके वार्ड मेंबर कौन है. अगर नहीं मालूम है तो यू फाइंड आउट. Sometimes these constituencies are counted as seats for each constituency, represent as one seat in the assembly. Constituencies को seat भी बोला जाता है. 5 seats means the party win 5 seats. It means 5 constituencies में उसकी जीत हुई. When we say Lokdal on 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lokdal on 60 assembly constituencies in the state, and thus Lokdal had 60 MLAs in the state. जैसे बिहार में अभी इलेक्शन, बिहार का एग्जाम्पल ताज़ा एग्जाम्पल है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, सबको याद होगा. 125 सीट्स हैव बीन ओन बाय NDA. NDA ने 125 सीटों पर विजय प्राप्त की. इसका मतलब क्या हुआ, NDA में जो 4 पार्टियां शामिल थी उन चारों पार्टीज़ के 125 MLAs चुने गए. सो देयर विल बी 125 MLAs in the state assembly of NDA. That is the meaning of constituencies. अब आपने अभी हम जब शुरू का स्लाइड दिखा रहे थे तो देखे थे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है डियर चिल्ड्रेन? वीकर सेक्शंस, समाज के कमज़ोर वर्ग के तबकों के लोगों को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए, अप टू लेवल लाने के लिए कुछ क्षेत्र को जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, उस समुदाय के लोगों की संख्या अधिकतर जहाँ ज़्यादा है, उस क्षेत्र को कुछ समय के लिए रिजर्व कर दिया जाता है फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी. सो हियर यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन certain weaker sections may not stand as a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. They may not have the required resources, education and contacts to contest and win elections against others. Those who are influential and resourceful, जिसके पास पैसे हैं, जो ताकतवर है, वही इलेक्शन लड़ पाते हैं, जीत पाते हैं. जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, कम पढ़ा लिखा है, या उसके पास पैसे नहीं हैं, या वो दलित कम्युनिटीज़ से आते हैं, उनके साथ भेदभाव होता था ओल्ड समय में, प्राचीन काल में समाज में, वे अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते. दे आर नॉट गेटिंग इलेक्टेड. और जब वो सरकार में नहीं होते हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट उनके बेटरमेंट के लिए अच्छे काम न कर रहे हों. तो दे थिंक दैट इफ़ सच पीपल विल कम इन गवर्नमेंट, दे विल रेज देयर वॉइस for their own betterment, and then government will make the policies, programs for their welfare. तब सरकार उनके कल्याण के लिए कदम उठाएगी. May prevent them from winning elections. So this way, reserve constituencies, such constituencies, इसका definition आप ऐसे लिख सकते हैं, such constituencies which are reserved for scheduled caste, scheduled tribes candidates, that constituency or those constituencies are called reserve constituencies. For giving the weaker section of society a fair chance of winning in the elections, the government thought of a special system of reserve constituency. अगर उससे जनरल कैंडिडेट भी खड़े हो जाएंगे, पैसे वाले भी बड़े जाति के, तो हो सकता है वह जो दलित कम्युनिटी से है या लोअर तबके से है वह नहीं जीत पाएंगे. तो केवल वहाँ से चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, ऑल विल बी फ्रॉम दैट वीकर सेक्शंस. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. In a scheduled caste constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election, can be candidate. जो सीट
अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, वहाँ से शेड्यूल्ड कास्ट का ही कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। सेम एज इन द केस ऑफ एसटी, जो सीट्स एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है वहाँ से एसटी कैंडिडेट ही भाग ले सकते हैं। करेंटली इन द लोकसभा 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट and 41 for the scheduled tribes. This number is in proportion to their share in the total population. उनके जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात के आधार पर इसे डिसाइड किया गया है। Thus the reserved seats of SCs and STs, scheduled caste and scheduled tribes do not take away the legitimate share of any other social group. This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. आप जानते हो पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट लेवल चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में, म्यूनिसिपल कमेटी में तो और भी इसको बढ़ाया गया है। उसमें तो ओबीसी और वीमेन को भी, वीमेन के लिए भी, महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की गई है, ओबीसी के लिए भी सीट आरक्षित है, एक्सट्रीम ओबीसी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी सीट रिजर्व है। आपके ही पंचायत में, आपके ही म्यूनिसिपल कमेटी में, म्यूनिसिपल एरियाज़ में आप देखोगे कोई वार्ड मेंबर केवल महिला होंगी, जिला परिषद महिला होंगी, मुखिया जी महिला होंगे, मेयर महिला होंगे, बिकॉज दैट सीट वाज रिजर्व्ड। ऐसा नहीं है कि रिजर्व में ही महिला जीतती है, बट मे बी जेंट्स, मे बी लेडीज़। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन municipalities and corporations, local bodies are now reserved for other backward castes that already I have discussed here. 1/3 of seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट रिजर्व किए गए हैं। So this way students, I have discussed about the constituencies. Next day I will discuss about voters list etc. थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप अपना विचार ज़रूर लिखें। समझ में आया नहीं आया, इफ़ एनी टॉपिक यू हैव नॉट अंडरस्टैंड, कुछ समझ में नहीं आया हो या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई समझने में परेशानी हो रही है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ मी। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो आई विल अपलोड वेरी सून। So thank you, take care, bye bye, love you all. Once more I will tell you that if you think video useful, अगर आपको अच्छा लगता है please press the like button, like the channel, like the video, give your comment, share, give your suggestion. Thank you, love you all, bye bye.